صحافت کے فاروق گل کی بک لانچ ہے اور آڈینس جو شاعر بھی یہاں پہ ہیں اور ادب کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور آرٹسٹ اکیڈیمک سب کو خوش آمدید۔ یہ کتاب شاہ صاحب کا جو سفر تھا ایز اے جرنلسٹ کے پہلے 10 سال کے ہیں، اس کی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو جرنلزم 60s اور 70s میں تھا اس کی کیا نیچر تھی، وہ کون لوگ تھے اور ان کا رویہ کیسا تھا۔ اور میرے خیال میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ آج کے جرنلزم کو دیکھیں اور اس سے کمپیئر کریں کہ کس طرح چینجز آتے ہیں۔ تو اکنالجمنٹ ہے کہ آسٹریلیا اردو انٹرنیشنل کے جو ممبرس ہیں ان کا بڑا ہارڈ ورک ہے اس فنکشن کے لیے، اور آگے پیچھے بھی ان کے کام ہیں، تو ان کو اکنالج کرتے ہیں ہم ان کا۔ میڈیا اسکالرس کے جو اقوال تحریر کیے ہیں وہ پڑھ رہی ہوں، اور جو ہے میں نے اس میں سے کچھ بھی کیا ہے۔ میں ایک دانشور کا قول ہے، اگر کسی ملک کے اخبارات اچھی خبروں سے بھرے ہیں تو اس ملک کے جیل اچھے لوگوں سے بھری ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی ملک کے اخبارات میں سب اچھا ہے تو سمجھیے اس ملک کی جیل میں بھی اچھے لوگ ہوں گے۔ اچھا، ایک اور ہمارے دانشور، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ اخبارات مر رہے ہیں، مجھے تکلیف اور شکایت یہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ They are killing themselves. I mean, یہ ایک مولی لیونز ایک دانشور تھے بہت بڑے، ان کا یہ ہے قول۔ اور ایک ہے لارڈ نارتھ کلف، تو ان کے اقوال صحافت سے متعلق یہ قول میں پڑھ رہی ہوں کہ خبر صرف وہ ہے جسے دبانے اور چھپانے کی کوشش کی جائے۔ خبر صرف وہ ہے جو وہ تبصرے بھی شامل ہیں جو ان کی شاعری اور ناول نگاری کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے اشرف شاد کا تخلیقی ادب مشاہیر کی نظر میں۔ ضیاء محی الدین افسانوں کے مجموعے پیلی لکیر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، شاد صاحب آپ کی کہانی شکیلا مجھے بہت اچھی لگی۔ اس میں آپ نے اخلاقی، نفسیاتی، ازدواجی رشتوں اور وہ گڑبڑ گٹالا ڈھونگ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رچاتے ہیں کو بڑی عمدگی سے نبھایا ہے۔ کہانی میں جو ابھر کے آئی ہے وہ آپ کے مرکزی کردار کی معصومیت ہے۔ مستنصر حسین تارڑ شاد صاحب کے ناولوں کے بارے میں لکھتے ہیں، آسٹریلیا میں مقیم اشرف شاد کا نیا ناول بی اے رستم ٹی وی اینکر مجھ تک چلا آیا۔ میں شاد کے اولی ناول بے وطن سے ہی اس کا مترف اور مداح ہو گیا تھا۔ ازاں بعد اس نے پہ در پہ ایسے ناول لکھے جو بس وہی لکھ سکتا ہے۔ وزیر اعظم، جج صاحب، صدر محترم وغیرہ لکھ کر وہ شکل سے ایک ایسا راجپوت لگنے لگا ہے جو ناول کی سلطنت کی دفاع میں ابھی تک شمشیر بکف ہے۔ جناب احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں، سیاسی موضوعات میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، کچھ کافی مشکل کے ساتھ، اور کوشش کی ہے کہ میں سادہ باتیں کروں، جو کہ میرے بعد آنے والے حضرات جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کتاب پہ تبصرہ کریں گے۔ صحافت کے خار و گل محترم اشرف شاد کی سوانح حیات کا ایک باب ہے جسے الگ کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ اس میں اشرف شاد صاحب نے 1966 سے 1974 کے 10 سال کی عرصہ میں اخباری دنیا سے متعلق یادداشتوں کو قلم بند کیا ہے۔ مجھے اس سے پیشتر شاد صاحب کی کتابوں پر اظہار خیال کا موقع ملتا رہا ہے۔ وہ کتابیں ادب سے متعلق تھیں، ان کا مطالعہ، ان کے بارے میں کچھ لکھنا میرے لیے خوشی کا باعث تھا۔ زیر نظر کتاب پڑھنے کے بعد میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ میں اس کے مدرجات یعنی کانٹینٹ کے بارے میں کس قسم کی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں۔ میں پروفیسر عباس زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں
जिनकी वजह से ये मुश्किल आसान हो गई। अशरफ की किसी किताब पे बात करता हूँ तो उसे पढ़ जरूर लेता हूँ, कम से कम सिर्फ दिबाचा नहीं पढ़ता बल्कि अंदर की बातें भी पढ़ लेता हूँ। और बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, जैसा कि और भी हमारे अली भाई ने बताया, कराची प्रेस क्लब के हवाले से पीपल्स पार्टी के दौर में होने वाली उस यादगार हड़ताल का जिक्र, जो पाकिस्तान की एक तारीखी सहाफती हड़ताल समझी जाती है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के की तरफ झुकाव होने के बावजूद उनकी तरफ से जो प्रेस में पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद जो दूसरा एक ग्रुप बना और उसमें उन्होंने जिक्र किया है लाड़काना में उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नसीम अहमद को हुर्रियत के चीफ रिपोर्टर निजाम सिद्दीकी साहब ने थप्पड़ मारा, और उस तारीखी थप्पड़ की उन्होंने एक पस मंजर भी बयान किया है कि वो, और मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने बयान किया है वो थप्पड़ हकीकत में भुट्टो साहब के सेक्रेटरी को नहीं मारा गया था, बल्कि उस निजाम को और उस रऊनियत को मारा गया था जो उस जमाने में हुक्मरानों का एक वतीरा बन गया था। और इक़्तिदार और नशे के गुरूर को थप्पड़ मारना यकीनन सहाफियों के लिए एक तसल्सल रहा है, इसीलिए वो जेलों में भी जाते रहे। सच लिखने का मौका और हौसला हो तो शोलों पर रक्स करना पड़ता है, और खरे सहाफी को अगर सच ना लिखना दिया जाए तो वो अंदर अंदर सुधार और गुल पर कुछ शब्द बख्शा मेरे मजमून का उन्वान है। हजरत फानी बदायूनी से पूछते तो वो जरूर यूं फरमाते कि सानेहे की जमा सानेहात और सानेहात का बयान सवाने है। मिर्जा अशरफ अली बेग यानी जनाब अशरफ शाद की इस किताब सहाफत के खारो गुल ने 1966 से 1976 तक के 10 वर्षों का अहाता किया है। अशरफ शाह साहब अपनी मुकम्मल सवाल उम्री एक पर लहू मिद्दा के नाम से अलग तहरीर फरमा रहे हैं। गोया जेर तबसरा किताब सवाने उम्री से ज्यादा सवाने नो उम्री है मालूम होती है। इस शक को तक़वियत सरे वक्त पर शायद अशरफ शाह साहब की तस्वीर से भी मिलती है। बरस 14 या के 15 का सिन, जवानी की रातें मुरादों की दिन। लिहाजा तस्वीर और किताब की मौज़ूआती नौ उम्री को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने मजमून भी शगुफ्ता ही तहरीर किया है। जो उन्होंने ये है तो ये सवाने उम्री आप बीती केस में आता है, मगर ये अब इस तरह की हिस्ट्री पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में, और उसको माना जाता है जो ये जो पेरिफ्रीज में जो कहानियां हैं, जो बज़ाहिर लगता है कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, मगर अब उन पे पूरी दुनिया में उनको बहुत तस्लीम किया जा रहा है कि यही तो है, यही तो असल चीज है। इसी से समझ में आता है कि उस दौर में हो क्या रहा था ये कहानियां पढ़कर। तो मैं तो खुद, क्योंकि मेरी तहकीक भी जो मैं कर रहा हूँ इसी बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो मुझे तो बहुत मदद मिली इससे और बहुत मजा आया। बाकी बातें हम अकेले में करें, जिससे बहुत सी चीजें जो हमारी तरह से लोग इधर रहते हैं और बहुत सी उर्दू की किताबें जो हैं या वहाँ का जो खबरों से जो हमारा इस्तिफादा होता है वही है, लेकिन इनसे ये पता चला कि सहाफ़ी की ज़िंदगी कैसी है और पाकिस्तान में सहाफ़त किन मराहल से गुजरती है। सहाफ़त के खारो गुल में अशरफ शाह साहब ने अखबारी दुनिया के इब्तदाई 10 सालों की यादाश्तें जिस 1966 से 1976 तक समो दी हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अखबारात में काम किया, जिनमें किताब पे वो दर्ज है, मेयार, अल-फतह, मशरक, हम, हुर्रियत, ऐलान, अंजाम वगैरह शामिल हैं। टाइटल में जवानी के ज़माने की तस्वीर में खूबसूरत और घने बाल तो थे ही, लेकिन ये तस्वीर एक लगन मगर एक कर्ब के साथ आया है। जब किताब को पढ़ना शुरू किया तो ये तस्वीर उन हालात, वाक़यात, जद्दोजहद। जमान साहब, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, तशरीफ लाए। डॉक्टर शब्बीर हैदर साहब,
हमारी दोस्त सहाफ़ी दोस्त हमारी कुमुद मीरानी, और हमारे साहिद राना साहब भी बैठे हैं, और हमारे सारे तमाम दोस्त जो है जो यहाँ मौजूद है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आप सबका इंतहाई शुक्रिया। आसान नहीं होता एक वीकेंड में वक्त निकालना और आना, ख़ासतौर पर ऐसे मौसम में, और आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं वाकई दिल से मशकूर हूँ आप सब दोस्तों का। आप में से बेशतर दोस्त पिछले साल और इसी जगह मेरी एक और किताब अंडरग्राउंड की तकरीब रूनुमाई में भी शरीक थे, और इस मौके पर भी उस्मा गिलानी साहिबा और ने एक खूबसूरत मज़मून पढ़ा था। डॉक्टर अब्बास ज़ैदी साहब उस तकरीब में मॉडरेटर थे। सच पूछिए तो मुझे अब अपनी किताबों की तकरीबात करते हुए शर्मिंदगी होने लगी है। बार बार आप दोस्तों को ज़हमत देना पड़ती है, और आप सब मेहरबान कुछ मोहब्बत में, कुछ मुरव्वत में, और शायद आदतन भी अपने वीकेंड का कीमती वक्त मुझे इनायत कर देते हैं। यकीन जानिए कि आप जैसे दोस्तों की इसी हौसला अफजाई के सबब मेरा ये अदबी सफ़र जारी है। ना मैं लिखते हुए थका हूँ और ना आप आते हुए। आज की ये महफिल भी इसी का सबूत है। मेरी पहली किताब निसाब जो मेरी शायरी का मजमूआ थी 1996 में पाकिस्तान में शाये हुई थी, और उसकी रूनुमाई सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के थिएटर में हुई थी। उसके बाद से वक्फे से किताबें आती रही हैं तकरीबन, और तकरीबात होती रही। ये मेरी 18वीं किताब है। अब वक्फे कम हो गए हैं और लगातार कई किताबें आई हैं। पिछले साल के बाद, इस साल की इस किताब के बाद अगले साल के लिए किताब तैयार है और छप रही है, और उसके अगले सालों के लिए भी किताबें तैयारी में बनाई हैं। दरअसल मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ वहाँ पहुँचकर नामुकम्मल कामों को पूरा करने की जल्दी तेज रफ्तारी का तकाजा करने लगती है। अहमद फराज साहब का शेर है कि सब ख्वाहिशें पूरी हो फराज ऐसा नहीं है, सब ख्वाहिशें पूरी हो फराज ऐसा नहीं है, जैसे कई अशार मुकम्मल नहीं हो। कि मैं अपनी सदियों लंबी जिंदगी में कई दफा सदर बनी, कॉलेज के ज़माने में रोमांटिक सोसाइटी की सदर, हिस्ट्री डिपार्टमेंट की सदर, वगैरह वगैरह, और बहुत से। ये कभी नहीं सोच सकती थी ये शाद साहब के मसादत से इस एजाज से भी नवाजा जाए कि वो हमारे बहुत अजीज और बहुत बड़े शायर और अदीब की किताब की रूनुमाई और मुझे सदारत की कुर्सी दी जाए। भाई अल्लाह के खेल निराले, गरीब को अमीर, अमीर को गरीब, और लिटरेरी महफिल की सदारत शाद साहब आपकी बेहद मशहूर हूँ कि मेरी इज्जत अफजाई। अब किताब के बारे में तो जो कुछ सबने कह दिया और सबने सुन भी लिया। मैं इसके बारे में मेरे ख्याल में ना ही कहूँ तो अच्छा है, पर्दा ही रहे। और अदीब और शोरा ने कह दिया है वो सब कर, लेकिन मैं तो किताब के लिखने वाले को पिछले तकरीबन 25-30 साल से तो ज़रूर जानती और मानती हूँ। इनके बारे में मैं जितना कहूँगी वो मेरे ख्याल में कम है। अभी कुछ रोज पहले मैं और यास्मीन एक महफिल में बैठे थे, तो सामने बैठे हुए थे काली फेल्ट और काला सूट और लाल प्योर चाइना सिल्क का मफलर पहने शाद साहब। मैंने यास्मीन से कहा, यास्मीन शाद साहब कुछ 18वीं सदी के कोई रॉयल बरतानवी खानदान के अफराद नहीं लगते हैं। अब आइंस्टाइन जैसी मूछें देखकर ये तो मैं नहीं कह सकती थी कि अमेरिकन लगती हैं। हाँ ये जरूर है कि निकले कहीं इन्हीं इलाकों में से, क्योंकि ये मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि मिर्जा अशरफ अली बेग कौन थे आपके? जवाशेर। मिर्जा अशरफ अली बेग जवाशेर की दास्तान हयात का एक जुज़वी किस्सा है। आबाओ अजदाद 7 पुश्त पहले आज़रबाईजान के किले काराबाग से निकलकर एक लश्कर के साथ हिंदुस्तान आए।